हेलो। अपना कर लीजिए। और देखते हैं कुछ और किसी को पता है। हाँ भाई। स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग कर लीजिए, देख लो कुछ बताना है। Wait for few minutes, Jatin. Good afternoon, everyone. अभी 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 हाँ, ठीक 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 है। फिर तुम एक बार नहीं, अमित तो है नहीं, अमित गया हुआ, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा ना कि वो जतिन जतिन को, हाँ, जतिन को वाइस चेयरमैन हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं। हाँ, चलिए एक सबको बोल देगी वीडियो ऑन करने के लिए। और एक एक ना सारे बच्चों को ये बोल देना पहले वीडियो ऑन कर लेंगे, कुछ करें फिर थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव लगता है, इंटरेक्टिव सा लगता है। मतलब एक बार तो आप शुरू करो, फिर हम उसके बाद आएंगे। नहीं, अनम्यूट तो आप खुद हो जाओगे, बस हम कर देते हैं। पहले वो कर लीजिए।
Last wait for 2 minutes more. Respected principal, sir, and other colleagues are coming. A humble request to students, kindly switch on your videos so that the session would look like an interactive one. So kindly switch on your videos. Beta, please, everyone, switch on your videos. Switch on your videos, everyone, please. So the session can be communicative. Aditi, Akshit, Aman, Amit, please switch on your videos. Shaheen, Shaina, Siddharth, Soha, Sonika, please switch on your videos fast, everyone. Ketan, Karthik, Jivyanshi, switch on your videos. Beta, switch on your videos. It is requested to switch on your videos. Specific name लेके ना कहा जाए. Switch on your videos. Yes, good afternoon, everyone. Beginning with this hopeful noon, I would like to quote a few lines by our respected Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही, वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा. With this, I welcome each one of you to this webinar. Rewari branch of NIRC of ICI with RPS Public School has been enough to guide us about Chartered Accountant course as career. Among us, we have few Chartered Accountant from our city, CA Amit Yadav ji, Chairman of Rewari branch, CA Jatin Sahni ji, Vice Chairman Treasurer of Rewari branch, CA Sukesh Jain ji, Secretary of Rewari branch, CA Akash Kaur, past Chairman of Rewari branch, CA Jitesh Agarwal, past Chairman of Rewari branch. CA Jatin Sahni is in practice, CA Jitesh Agarwal is in employment. I, along with my colleagues, Mrs. Swati Yadav ma'am, Mrs. Sangeeta Yadav ma'am, welcome you on the behalf of RPS Public School. I also honor our respected principal sir, Mr. Vikram Yadav sir, and our PGT coordinator, Suman Yadav ma'am. Looking at the current pandemic situation, going through the most difficult time, we all never imagined and we all still hopeful and determined to learn better and do better with each day. The Government of India has relieved us by the cancellation of our board exam. Now, what next? Every student who opts for commerce after 10th aspire to be a chartered accountant. So today we are here to avail the opportunity to actually know the actual process from opting in 11th to become chartered accountant, being one of the most royal profession. We are delighted to have CA Nikunj sir, Mr. Nikunj Agarwal ji, who is renowned speaker. He is in practice and organized job-oriented program. He will share his views with us about what all does it take to be a chartered accountant. Now I hand over mic to Mr. Nikunj Agarwal. Respected principal sir, please give me permission. Principal sir, are you there? I think so 100 capacity has been filled. So Vikram sir will not able to join. So let's start with Nikun sir. Nikun sir, I am handling you mic. Now you can
give your valuable opinion to how to become a chartered accountant. Nikun sir, are you listening me? Thank you so much, Tanvi ma'am, for this Welcome, big sir. gesture and the opportunity to present our profession, our noble senior members before the students, before the upcoming buds of Rewari, and how we can help them to upgrade themselves to excel in the field of commerce. So I would like to thank Rewari branch of ICI as well as RPS School Management for allowing the opportunity to handle this program. Hello. I believe we are short of time, so I'll be starting straight away with the most opportunities and all these things. फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव हम जो ये पेंडेमिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये सभी के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, बहुत टाइम सभी ने फेस किया, स्पेशली स्टूडेंट्स ने, क्योंकि अभी मैं जब परसों तन्वी मैम से बात भी कर रहा था तभी हमने ये एक चीज डिस्कस किया कि सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत भी की है ना, सभी खुद को एक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में पा रहे हैं कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद खुद को प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि एग्जाम्स कैंसिल हुए, कंसिडरिंग द सिचुएशन जो हमको फेस करनी पड़ रही है, जो भी प्रॉब्लम है ना, सेफ्टी को हमने प्रायोरिटी रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एग्जाम्स ना दें। और आई बिलीव मैम, तन्वी मैम, हमारे साथ सभी स्टूडेंट्स 12th जो क्वालिफाई कर चुके हैं और 12th में है वही है हमारे साथ। हाँ सर, 11th के स्टूडेंट्स भी हैं, थोड़ा सा उनको भी लेकर चलेंगे सर हम। हाँ जी सर, बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू सो मच। देखिए हम शुरू करते हैं। कुछ पहले हम समझे कि कॉमर्स जो हमने फील्ड चुना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने, है ना, मैं चाहूंगा थोड़ा हमारा सेशन इंटरेक्टिव रहे। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या एक सपना लेकर के कॉमर्स स्ट्रीम चुना होता है। जनरली कोई एक दो स्टूडेंट्स में चाहूंगा कि शेयर करें हमारे साथ कि हमने किस सोच के साथ कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट किया ओवर साइंस और आर्ट्स। कुछ एक दो स्टूडेंट शेयर करना चाहेंगे प्लीज। देखिए हम चाहेंगे तो हम बातचीत करें, इसको सिर्फ हम एक लेक्चर के तौर पे ना रखें, एक इंटरेक्टिव सेशन रखें। सर मैं चाहती हूँ आप एक बार ही बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए, जतिन सर। Madam, one can unmute himself if he want to speak. Okay sir, thank you sir. Yes Barkha, please share your valuable views. Barkha Yadav, Samarthita, please share your views with respective Nikun sir. Or one can put his response in chat box also. Okay, nobody is interested. I believe most of students शायद इस वजह से शेयर ना कर पा रहे हो क्योंकि अभी इनको क्लैरिटी ही नहीं है कि हमने क्यों ये फील्ड्स या स्ट्रीम चुना, है ना। मैंने देखा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करते हैं कॉमर्स, शुरुआत में हमको बहुत से ऑप्शंस पता ही नहीं होते कि हम कॉमर्स फील्ड ज्वाइन जरूर कर रहे हैं। हमको पता है यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन क्या क्या है वो क्लैरिटी नहीं है, राइट। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्यों ज्वाइन करते हैं कि सर वो मैथ्स पढ़नी नहीं थी, है ना, और आर्ट्स लेनी नहीं थी, तो सर एक ही ऑप्शन बचा था कॉमर्स, इसलिए हमने चुन लिया। लेकिन अब हम क्योंकि चुन चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब हमको आगे के लिए सोचना जरूर पड़ेगा कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, किन स्ट्रीम्स में हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना, क्या क्या हमारे लिए करियर ऑप्शंस हो सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, जो कि आई बिलीव कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम्स है। सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज ही कॉमर्स स्ट्रीम में है आपके पास, तो बहुत एक अच्छा डिसीजन है। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने ये स्ट्रीम चुना।
और डेफिनेटली आप बाकियों को भी एनकरेज करेंगे कि आप इसी में आगे जाए। देखिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें मैं आपको कुछ अभी शेयर करूंगा, कुछ करियर ऑप्शंस हमारे साथ क्या क्या हैं, फिर हम थोड़ा सा इन डिटेल सीए कोर्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली सीए कोर्स देखिए सभी जानते होंगे क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आपके साथ तन्वी मैम बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई हैं, रेगुलर आपके साथ कनेक्टेड रहती हैं, तो बहुत सी चीजें आपको सीए कोर्स के बारे में डेफिनेटली पता होगी कि क्या ये कोर्स है ना। फिर भी थोड़ा सा कुछ अपने एक्सपीरियंस में इसमें डालना चाहूंगा। निकुंज जी माफी चाहूंगा, विक्रम यादव जी है जी सर। एज ए प्रिंसिपल ऑफ आरपीएस स्कूल। जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर वीडियो ना, दैट्स आर ऑफ। सबसे पहले तो आप लोग अपना ना वीडियो ओपन करें, फिर आप लोग कंसंट्रेट कैसे करेंगे, है ना। सर की बात देखिए कितनी अच्छी बातें आप लोगों से शेयर की जा रही है ना, आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। और आप लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड बातें हैं बेटा, ये केवल नॉर्मल स्टडी से रिलेटेड ही नहीं है, ये आपके फ्यूचर में आने वाली बातें हैं जो हमारे टाइम में तो कोई बताने वाला था ही नहीं, किसी ने कभी डिस्कस किया ही नहीं। और आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी यदि मिल रही है तो आप लोगों को उसका बेनिफिट लेना भी चाहिए। दैट्स गुड। एवरीवन ओपन देयर वीडियो, राइट, दैट्स गुड। निकुंज जी बी कंटिन्यू प्लीज। ओके सर। देखिए कुछ कोर्स हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम पोस्ट 12th हम परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उन सभी कोर्सेज के लिए देखिए आपको समझना पड़ेगा कि तैयारी हमारी 11th से शुरू होती है। सबसे अच्छी चीज हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में क्या है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, हमारे कॉमर्स की ABCD वो हमारी 11th से ही शुरू हो रही है। पीछे जो अब तक हमने 10th में जो भी चीजें पढ़ी, 10th तक जो भी चीजें पढ़ी, वो हमारा बेस जरूर बना रही है, लेकिन हम आप समझिए एक तरह से प्रोफेशनल फील्ड में 11th स्टैंडर्ड से ही आ जाते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी आज तक शायद आपने नहीं पढ़ा था 11th स्टूडेंट्स ने, है ना, लेकिन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं मैं, जो 11th में आपने अकाउंटेंसी की है, ये आप कर रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स कर चुके हैं 11th की अकाउंटेंसी, बिल्कुल वही अकाउंटेंसी सीए फाइनल तक भी चलेगी, कुछ अलग नहीं, सेम रूल्स हैं, सेम कंसेप्ट हैं, है ना। तो आपका फाउंडेशन यहाँ पर डाला जा रहा है ना, नींव डाली जा रही है, आप समझिए। और अगर नींव मजबूत है हमारी, तो आगे बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई जा सकती है, बहुत मजबूत बनाई जा सकती है, जो सालों साल टिकेगी, 100 साल तक भी नहीं जाएगी, है ना। लेकिन अगर नींव कमजोर है, लेकिन उसके ऊपर हमने बिल्डिंग बड़ी सुंदर बना दी, तो पता नहीं कब ढह जाए, है ना, वो सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो आज देखिए आपके साथ जो सबसे अच्छी चीज है, आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं सभी। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ बेस्ट फैकल्टी जुड़ी हुई है। रेवाड़ी के एक आप कह सकते हैं सबसे अच्छी टीचर्स में से एक है हमारे पास तन्वी मैम, जो आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आपको पूरा बेनिफिट इसका उठाना चाहिए, पूरा फायदा लेना चाहिए कि हमको जो अपॉर्चुनिटी मिली है शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, है ना। तो जितना भी हम इससे इनसे गेन कर सकें, जितना भी सीख सकें, और अपने फाउंडेशन को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है जी। आप समझिए आपके कंपटीशन में आपके सिर्फ आरपीएस के स्टूडेंट्स नहीं है, आपके कंपटीशन में वर्ल्ड ओवर के स्टूडेंट्स बैठे हैं। आज की डेट में कंपटीशन विद इन सिटी या विद इन स्कूल नहीं रह गया, आज की डेट में कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है। हर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, हर कोई प्रोफेशनल लाइन में जा रहा है, लेकिन एक्सेल कौन कर रहा है वो डिपेंड करता है कि हमारी फाउंडेशन कैसी थी, हमने उस वक्त कितनी मेहनत की, चीजों को समझते वक्त कितनी मेहनत की, रादर की बाद में हमने उसमें एक्सपर्टीज कितनी। एक्सपर्टीज तभी आ सकती है अच्छे से जब हमने आज बड़े अच्छे से मेहनत की, ठीक है। तो आज आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सोच के करना है कि मुझे आगे क्या करना है। आज ही आपको अपना माइंड मेकअप बनाना पड़ेगा, आज ही से सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे क्या करना है, और ये जो आज मैं चीज पढ़ रहा हूँ ये मुझे आगे कैसे काम आई। थोड़ा सा इसकी गाइडेंस के लिए हम आज आपके पास अवेलेबल है। पोस्ट सेशन जब मैं अपना कंप्लीट करता हूँ, आप अपनी क्वेरीज भी रख सकते हैं। जतिन सर, जितेश सर और तन्वी मैम भी आपके साथ हैं, सभी सीएज ही हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले कुछ मैं अदर कोर्सेज डिस्कस कर रहा हूँ सीए के अलावा, जो आप अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं। उसके अलावा सीए तो बेस्ट कोर्स है ही, सभी को पता है, नंबर 1 कोर्स है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर टॉप मोस्ट प्रोफेशनल बॉडीज में एक हमारा ICAI आता है, सीए इंस्टीट्यूट आता है,
है ना, और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है वर्ल्ड ओवर। इंडियन सीएज को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वर्ल्ड ओवर मिलती है, क्योंकि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप ये भी मान के चलिए, देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे प्रोफेशन के साथ या हमारे स्ट्रीम के साथ, आपने आज जो अकाउंटेंसी पढ़ी है वो ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी कंट्री में किसी और तरह से चल रही होगी। अकाउंटिंग के रूल्स बिल्कुल एक जैसे चलेंगे इंटरनेशनली, सब जगह एक जैसे ही होता है ना। मतलब जो चीज डेबिट होनी है वो इंडिया में भी डेबिट होनी है ना, और यूएस में भी वैसे ही डेबिट होना है। तो आप एक इंटरनेशनल चीज यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है जी। अब आपको उस पर कैपिटलाइज कैसे करना है, उसमें आपको अपनी एक्सपर्टीज किस तरह से जोड़नी है आगे चलकर के फ्यूचर, वो हम आज थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कुछ कोर्सेज हैं, जैसे ग्रेजुएशन में जब हम जाते हैं तो बीकॉम तो हम सबको पता ही है ना। कुछ स्टूडेंट्स के साथ अभी एक इशू ये हो रहा है कि सर अब मैंने बहुत मेहनत की, मेरा ड्रीम था कि मुझे एसआरसीसी में जाना है या मुझे डीयू में रामजस कॉलेज में जाना है या हिंदू कॉलेज में जाना है, लेकिन अभी मैं नहीं जा पा रहा या मेरे को पता नहीं है कैसे मैं जा पाऊंगा, क्योंकि मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन अब मैं सब बराबर लेवल पर आ गया, पता नहीं मुझे क्या रिजल्ट किस तरह का मिलेगा। 12th में मुझे प्रमोट तो आगे कर दिया गया 12th से, लेकिन समझ नहीं आ रहा सर मेरे को आगे जो मेरे ड्रीम्स थे वो कैसे फुलफिल होंगे, है ना। तो उम्मीद है कि देखिए आपके साथ कुछ इसमें गलत नहीं होने वाला। अगर हो सकता है ये सिचुएशन आज है, जो 11th में 12th में स्टूडेंट्स हैं, आज से 2 साल बाद भी हो सकती है, आज से 5 साल बाद भी सेम सिचुएशन फिर से अराइज हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो हमको अपने आप को हेडस्ट्रॉन्ग बनाना है ना। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग खुद को करना पड़ेगा कि किसी भी तरह की सिचुएशंस आए हमको खुद पर विश्वास नहीं छोड़ना, ठीक है जी, मेहनत करते रहना है। अभी उम्मीद है कि शायद कॉलेजेस में जो अब सिलेक्शंस होंगे, या पहले तो कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे सिलेक्शंस होते थे 12th में जो मार्क्स आते थे, तो इस बार चांसेस है कि हम शायद एंट्रेंस देखें। तो जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने जो भी काम किया है, वो वेस्ट तो नहीं जाने वाला डेफिनेटली। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहेगा कि आपको अपने जो भी आपने मेहनत की है उसके बेस पर आपको अपने रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, अपने ड्रीम्स जरूर आपको पूरे होते मिलेंगे। सिर्फ शायद समय के साथ हमारा तरीका बदल गया चीजों को अचीव करने का, ठीक है जी। तो कुछ कोर्सेज हैं, देखिए बीकॉम के अलावा भी बहुत से कोर्सेज हैं हमारे पास ग्रेजुएशन में, जिस तरह से आपने कभी नाम सुना होगा बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो जिन लोगों को आगे मैनेजमेंट में ही जाना है, हमने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे मैनेजमेंट स्ट्रीम में, फाइनेंस मैनेजमेंट में जाना है या एचआर मैनेजमेंट में जाना है ना, आप बीबीए भी परस्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया वाइड, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा एक कोर्स हमारे पास आता है BFIA, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इसके लिए एक कॉलेज है दिल्ली के अंदर, शहीद सुखदेव कॉलेज रोहिणी में, उसका भी अपना एंट्रेंस होता है अलग से। तो अगर आप उसके लिए अपीयर होना चाहें, वही बेसिकली कोर्स हमको फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट का ही एक्सपर्ट बनाता है, जिसमें कल को मैं किसी कॉर्पोरेट के साथ जुड़कर एज फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपनी गाइडेंस दे सकूं, उसमें मैं आगे बढ़ सकूं, राइट। ये मैं अभी ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हमारे क्या कोर्सेज हो सकते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम सीए कोर्स के ऊपर आएंगे, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास एक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है लॉ के अंदर, राइट। तो LLB एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, BA LLB। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं BA LLB के लिए, और लॉ की स्ट्रीम में आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर हमारे रेवाड़ी के ही बहुत से स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं, बहुत नाम कर रहे हैं, बड़े से बड़े केसेस लड़ रहे हैं, बड़े से बड़े इंडिया के लिए आप सोचिए काम कर रहे हैं वो, है ना। तो उसके लिए आपके एक ऑप्शन क्लैट का होता है, जिसमें बहुत से कॉलेजेस अपना एक तरह का समझिए एंट्रेंस रखते हैं। जैसे आप कैट सुना होगा आपने, MBA के लिए होता है, इसी तरह से आपका LLB के लिए क्लैट होता है, राइट। लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली, क्यूमुलेटिव लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपको तैयारी करनी होगी आपके 12th के दौरान ही, क्योंकि 12th के जस्ट बाद आपका क्लैट होगा, जिससे कि बेसिस पे आपका लॉ कॉलेजेस में एडमिशन होगा। 5 इयर्स कोर्स होगा BA LLB, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आप 5 साल के बाद एक प्रोफेशनल लॉयर के तौर पर निकलेंगे, और एज आप लॉ एडवाइजर, लॉ कंसल्टेंट आप लोग काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में जॉब कर सकते हैं, खुद की अपनी लॉ प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं।
राइट। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा कोर्स आता है जिसको हमने नाम दिया है एक्चुरीज, राइट, एक्चुरियल साइंस। लेकिन थोड़ा सा हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स उससे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्चुरियल में हमको मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरी मैथ्स बड़ी अच्छी है, मुझे मजा आता है मैथ्स पढ़ने में, मुझे कैलकुलेशंस में बड़ा मजा आता है ना, वो एक्चुरियल साइंस में जा सकते हैं। एक्चुरीज बेसिकली करते क्या है, वो रिस्क असेसर्स है। वो आपको आपका रिस्क असेसमेंट करके देते हैं कंपनीज को या किसी भी क्लाइंट को अपने। रिस्क असेसमेंट में जैसे आप देखें इंश्योरेंस कंपनीज है ना, कोई इंश्योरेंस कंपनी ने फॉर एग्जांपल कोई नया प्लान निकाला जिसमें वो प्रीमियम डिसाइड कर रहे हैं। अब वो प्रीमियम किस हिसाब से रखें कि कितने चांसेस हैं कि हमको क्लेम्स आ सकते हैं कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, अकॉर्डिंगली उनको एक अपने रिस्क असेसमेंट लगाना होता है। तो उस रिस्क असेसमेंट के लिए एक्चुरीज को हायर किया जाता है। और आप मानिए एक एक्चुरी अराउंड 60 to 70 lakhs की इजीली सैलरी ले लेता है स्टार्टिंग पैकेज। लेकिन कंप्लीट जिसने एक्चुअली किया, टोटल आपको 16 एग्जाम इसमें देने होते हैं और एक कोरेस्पोंडेंस एग्जाम है, जिस तरह से हम अभी आगे बात करेंगे सीए, सीएस और सीएमए के बारे में, उसी तरह से ये हमारा एक्चुअलीज का एग्जाम भी एक कोरेस्पोंडेंस कोर्स है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद हमको कुछ स्टडी मटेरियल मिलता है, उसके लिए हमको खुद तैयारी करनी होती है। आप प्राइवेट कोचिंग्स ले सकते हैं, लेकिन कोई रेगुलर कॉलेज नहीं है, कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है। इसके लिए आपको 16 एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, जो कि आप सिंगल सिंगल करके भी दे सकते हैं, ग्रुप्स में भी दे सकते हैं। और 16 एग्जाम्स आप कंप्लीट करने के बाद आप कंप्लीट एक्चुअली कहलाते हैं। बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में और बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है, आप समझ के चलिए, है ना। और तभी वैल्यू है ना, जिस चीज में मेहनत नहीं है उस चीज की फिर वैल्यू भी नहीं है मार्केट के अंदर, राइट। अब उसके बाद देखिए हमारे पास जो एक जनरल प्रोफेशनल कोर्स हमारे सीए स्टूडेंट्स चुनते हैं ज्यादातर, और जो कि बेस्ट कोर्सेज हैं, जिनमें एक सीए है, सीएस है और सीएमए है। तीनों ही एक जैसे कोर्सेज हैं, तीनों अलग अलग इंस्टीट्यूट्स इनको रन करते हैं। और इनका देखिए कोई कॉलेज नहीं होता, ना सीए का, ना सीएस का, ना सीएमए का, है ना। तीनों के अपने अपने इंस्टीट्यूट है। थोड़ा थोड़ा कोर्स के स्ट्रक्चर में फर्क है, थोड़े एक्सपर्टीज लेवल का फर्क है, लेकिन मोटा मोटा आप पाएंगे कि कोर्स तीनों एक जैसे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई भी कोर्स खराब है या अच्छा है, लेकिन सभी कोर्स बढ़िया हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज इंडिया में धीरे धीरे देखिए बढ़ रही हैं, क्योंकि कंसिडरिंग कोरोना, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड ओवर थोड़ा सा चाइना को लेके एक हेट्रेड डेवलप हो रहा है, तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, बहुत सारे अपने प्लांट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने ऑफिस शुरू कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए अच्छी चीज क्या हो रहा है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, ऑप्शंस हमारे लिए खुलते जा रहे हैं, नई नई कंपनीज आ रही है, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, है ना। हम खुद भी एज स्टार्टअप आगे शुरू कर सकते हैं चीजें। बहुत अच्छी अच्छी लोग इन्वेस्टमेंट करने को इंडिया में तैयार बैठे हैं। आप देखिए रिसेंटली पिछले 8-10 साल में अगर हम देखेंगे, बहुत यंग स्टार्टअप्स इंडिया में आए हैं, है ना। जितने भी आप ये नई कंपनीज देख रहे हैं, देखिए जैसे ओयो रूम्स है, सुना है सभी ने ओयो रूम्स? यस, आप थोड़ा सिर हिला के तो हाँ कर ही सकते हैं, हाँ या ना, है ना जी। ओयो रूम्स नहीं सुना? देखिए होटल चेन है बेसिकली, है ना। और उनको स्टार्ट करने वाला भी एक, आप समझिए, यंग बंदा है जिसने 17 की एज में, है ना, एज एंटरप्रेन्योर शुरू किया। लेकिन देखिए कुछ भी शुरू करने के लिए आपको नॉलेज साथ में अटेन करनी पड़ेगी। और आज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स है इंडिया, राइट। ओला है ना, पेटीएम है, एक समय पे फ्लिपकार्ट था, आज कितना बड़ा जायंट है फ्लिपकार्ट, सभी जानते हैं, है ना। सभी कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स। बहुत यंग लड़कों ने, यंग बच्चों ने इसको शुरू किया और आज बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए। उस दौरान मेहनत की, अपने नॉलेज पर काम किया, है ना, खुद की एबिलिटीज को पहचाना, सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब्स के पीछे नहीं दौड़े, है ना। लेकिन कुछ भी अटेन करने के लिए हमको, आप समझिए, नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। आप लोगों ने कुमार मंगलम बिरला का नाम सुना है? कुमार मंगलम बिरला, है ना। आदित्य बिरला ग्रुप है, आइडिया है ना, हिंडाल्को कंपनी है, इनका ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला। उनके इंडिया में ना एक समय था जब
सिर्फ 2 या 3 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते थे, सबसे अमीर लोग, है ना, जिनमें होते थे टाटा, बिरला और अंबानी। तो देखिए, बिरला वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज है इंडिया, सारे पैसे हैं, कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन आप पाएंगे कुमार मंगलम बिरला जब यंग थे, उनके फादर थे आदित्य बिरला, है ना, जब यंग थे उस टाइम उन्होंने सीए ज्वाइन किया, सीए कोर्स। और आपको बता दूं, सीए कोर्स में कोई किसी तरह का कोटा नहीं चलता, है ना, किसी तरह की अप्रोच नहीं चलती। जिसको नॉलेज है, जो डिजर्विंग है, वही आगे बढ़ेगा। कुमार मंगलम बिरला अपना जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं बहुत उनको फॉलो करता हूँ कुमार मंगलम बिरला को, जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उन्होंने जिस मेहनत से काम किया अपने सीए कोर्स के दौरान, है ना, जबकि अगर पैसा था तो वो इजीली कुछ भी कर सकते थे, किसी भी यूनिवर्सिटी में, बड़ी से बड़ी वर्ल्ड ओवर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन वो कहते थे मुझे कि जी देखिए, मुझे नॉलेज चाहिए थी, और नॉलेज तभी मिल सकती थी जब मैं खुद मेहनत करता। दिन रात हमने एक किया, दिन रात मेहनत लगाई, अदरवाइज मैं क्या करता, अपने एम्प्लॉयज पर डिपेंड करता। तो देखिए, कोई चाहे मैं अपना बिजनेस चलाऊं, चाहे मैं जॉब करूं, है ना, नॉलेज तो आपको अटेन करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ तभी होगा जब आपने खुद सच में मेहनत की, चीजों को सच में समझा है, राइट। उसके अलावा देखिए, सीए, सीएस, सीएमए, मैं थोड़ा एक बार फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस इज कंपनी सेक्रेटरी, राइट, एंड थर्ड सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीए के बारे में अभी इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, उससे पहले मैं एक बार सीएस डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, हम मोटा मोटा समझे, जैसे हमने मूवीज में देखा है ना, कि एक बंदा होता है सेक्रेटरी, किसी किसी भी कंपनी के एक पर्सन का, है ना, एमडी का, चेयरमैन का सेक्रेटरी होता है। वो हर वक्त उसको क्या बता रहा होता है कि सर आज आपकी इसके साथ मीटिंग है, आज आपको इनसे मिलना है, आज आपको ये करना है। महीना उनको क्या, पर्सनल सेक्रेटरी है, हम बात कर रहे हैं, यानी कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, ये डिसीजन मेकिंग, है ना, इसकी एडवाइजरी। यस, एम आई ऑडिबल? कैरी ऑन सर। कंपनीज को क्या लॉजिबल है, किन चीजों की कंप्लायंस कंपनी को करनी होगी, है ना, कब कंपनी की क्या मीटिंग होनी चाहिए। सॉरी, यस जतिन भाई। ओके, देखिए, कंपनीज की कब क्या मीटिंग होनी है, क्या डिसीजन लिए जाए कंपनी में, किन किन बंदों को मीटिंग अटेंड करना है, क्या एजेंडाज पेश किए जाएंगे मीटिंग के लिए, वो सभी कौन मैनेज करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। वो सब इतना, एक पूरी कंपनी को रन करने के लिए आपको एक्सपर्टीज तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो आप जनरली पाएंगे कि कंपनीज के ऊपर क्या क्या कंप्लायंसेस लागू होते हैं, इन सब चीजों के एक्सपर्ट कौन है, हमारे कंपनी सेक्रेटरी। हालांकि ये बाकी जो हमने 2 कोर्सेज डिस्कस किए उनमें भी वो लोग चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सीएस इस चीज के एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है जी। और सेकंड एक कोर्स है सीएम में, मैं इनके कोर्स के स्ट्रक्चर पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमको आगे हम देखेंगे सीए के हम कोर्स को डिस्कस करेंगे, तो वो मोटा मोटा दोनों या तीनों कोर्सेज एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही पासिंग क्राइटेरिया रहता है, एक जैसे ही आपका कोर्स का स्ट्रक्चर रहता है ना, और सब्जेक्ट्स भी एक ही जैसे होते हैं मोटे मोटे। तो इसलिए हम जब सीए को डिस्कस करेंगे तो आप समझिए सीएस और सीएम में हम साथ साथ डिस्कस कर ही रहे, राइट। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, तो हम हर चीज को इन डिटेल डिस्कस नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि हम लोग किस चीज के एक्सपर्ट बन रहे हैं, कॉस्टिंग के। कॉस्टिंग यानी कि चीज को बने, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट,
सर नेटवर्क इशू है आपके, आई वुड रिकमेंड कि आप अपना वीडियो ऑफ कर दें के लिए। अभी आप जी सर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है निकुंज जी। जी अभी आ रही है? हाँ जी अभी आ रही है। ओके, देखिए कॉस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली हमको क्या करना है, हमको कंपनी को एडवाइज करना है कि कंपनी कैसे अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकती है ना, कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, लागत कम कर सके, है ना, मिनिमाइज कर सके, ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको अपने कंपटीटर्स को भी बीट करना है। हम कम से कम प्राइस पे अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सके, वो तभी हो सकता है जब मेरी कॉस्ट कम आए, जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट खुद कम है ना, एक्सेसिव कॉस्ट को मैं रिड्यूस कर पा रहा हूँ, राइट। हमको ऑप्टिमाइज करनी है चीज, राइट। उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स कौन होंगे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे लेबर कॉस्ट है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, किसी भी प्रोडक्ट में ये सभी तरह के खर्चे हैं, है ना। ऑपरेशनल कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, ये सभी तरह की कॉस्ट देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगी होती है। अब मुझे वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प क्या करनी है, सीएमए या कॉस्टिंग प्रोफेशनल, कि कंपनी इन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सके, कम ना करे, ऑप्टिमाइज करे, राइट। मुझे उनको सलाह देना कि कहां पर उनका खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहां पर उनको खर्चा बचाया जा सकता है। अब इतना सारा देखिए, हर तरह की कॉस्ट को अगर मुझे मैनेज करने के लिए उनको समझाना है, तो हर तरह की चीज को भी मुझे अच्छे से सीखना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट थिंग देखिए, थर्ड कोर्स जो हम अभी डिस्कस करने वाले थे, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये है एक मल्टी एक्सपर्ट बंदा, है ना, मल्टी एक्सपर्टीज, सब कुछ आता है। लॉ का एक्सपर्ट भी है, कॉस्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी है, और जो बाकी लोग ने इतने एक्सपर्ट लेवल पे नहीं पढ़ा, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, नेटवर्क निकुंज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है, बाकी मैं नेट तो मैं चेक कर रहा हूँ, तो निकुंज सर Wait for 2 minutes, beta. Nikunj sir is checking his network. Wait.
Wait, everyone. जी, अभी आपको आवाज आ रही है सभी को? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, सीए कोर्स की हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, जब सीए कोर्स की हम बात करते हैं तो हम पता है ये सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है, या इसको जिसने भी जो इस कोर्स को परस्यू भी कर रहा है, वो एक मल्टीपल एक्सपर्टीज बंदा बन जाता है ना। क्योंकि अभी हमने बात की कि जो सीएस कर रहा है वो बंदा क्या करेगा, लॉ पढ़ेगा बड़े अच्छे से, कंपनी के कंप्लायंसेस को समझेगा, है ना, लेकिन वो कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरली नहीं देखता, जनरली वो कंपनी के अकाउंटिंग नहीं देखता, है ना। कंपनी कैसे क्या क्या चीज का फॉलो करना है, कंपनी को कब क्या करना है, इसकी डिसीजन मेकिंग में जरूर हेल्प करता है, लेकिन है ना, इसी तरह से कॉस्ट में Students, please wait. Nikun sir is just rejoining us in a while. Please wait for some moments only. यस, अभी सभी को आ रही थी आवाज? जितिन सर? Yes, sir. Audible. आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, एक्सपर्टीज में जहाँ कॉस्टिंग और लॉ की बात आ रही है वो तो सीए कर ही रहा है, लेकिन वो साथ साथ टैक्सेशन भी एक्सपर्ट लेवल पे पढ़ रहा है। आपने जनरली जब सीए के बारे में बात सुनी होगी तो आपने सुना होगा कि टैक्स के यार एक्सपर्ट है, टैक्स का बड़े अच्छे से पता होता है। हालांकि अभी हम लोगों ने टैक्स पढ़ा नहीं है, लेकिन कभी कभी घर में सुनने को मिल जाता है कि पापा सीए के पास गए हैं इनकम टैक्स के लिए, है ना, कोई नोटिस आ गया उसके लिए चले गए हैं, या कोई हेल्प लेनी थी, कोई सजेशन लेना था, तो टैक्स के लिए वो सीए के पास ही जाता है। कंपनीज में आप पाएंगे जो कॉर्पोरेट्स में सीएज हैं, कंपनी के फाइनेंस मैनेजर जनरली आप पाएंगे, कंपनी के सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर सभी सीए हैं, या तो एमबीए मिलेंगे, एमबीए फाइनेंस, या सीए मिलेंगे, है ना जी। मेजॉरिटी कंपनी, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के फाइनेंस मैनेजर, सीएफओ, फाइनेंस हेड, है ना, वीपी फाइनेंस, इस सभी पोजीशंस पर कौन लोग बैठे हुए हैं? सीए प्रोफेशनल। थर्ड, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में तो देखिए सीएस का कोई सानी ही नहीं, है ना, कोई टक्कर ही नहीं दे सकता, क्योंकि हर चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ा 11th में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ना, अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने वाली ही बॉडी आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आप सोचिए, जो बॉडी ने, आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उनके प्रोफेशनल्स
उनके तो बहुत एक्सपर्ट है। फिर देखिए थर्ड चीज, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कोई बता सकता है क्या होता है ऑडिटिंग? एनीवन प्लीज, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। बेसिकली चेक करना अपने अकाउंट्स को। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकाउंट्स को चेक करना। देखिए कंपनीज को चलाने वाले लोग होते हैं डायरेक्टर्स, है ना, पढ़ा है हमने थोड़ा सा ये बिजनेस स्टडीज में। और कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। अब सभी शेयर होल्डर्स तो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनी से, है ना, रिलायंस जैसी कंपनी है, करोड़ों शेयर होल्डर है, तो सभी तो पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट ने विश्वास किनके ऊपर रखा, लॉ बनाया गया कि हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करवानी पड़ेगी, किसी सीए से चेकिंग करवानी पड़ेगी, और फिर वो अकाउंट्स अपने शेयर होल्डर्स को देंगे हम, ताकि शेयर होल्डर्स आंख बंद करके उस पर यकीन कर सके। उनको पता है कि मुझे जो भी बताया जा रहा है कि मेरी कंपनी, मेरा पैसा सेफ है या नहीं, उसके ऊपर एक सीए ने चेकिंग की है, तो फिर वो ऑथेंटिक, वो जेन्युइन है ना। ऑडिट करने का राइट, ऑडिट करने की पावर लॉ में गवर्नमेंट ने सिर्फ सीएस को दी, क्योंकि दो चीजें, देखिए दो वजह है। एक तो माना गया कि सीए ही एक्सपर्ट है, इससे ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, है ना। दूसरा, ये बंदा विश्वास लायक है ना, इसकी इंटेग्रिटी स्ट्रांग, झूठ नहीं बोलेगा, है ना, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करे। हालांकि हम देखिए एक्सेप्शंस हमेशा सब जगह होते हैं, है ना, लाखों में से कोई दो चार कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी सीए देखिए एक सेफ गार्ड के तौर पे काम करते हैं, नेशन के सेफ गार्ड के, यानी कि एक तरह से समझो हम भी एक सैनिक है। हम क्या कर रहे हैं, नेशन की इकोनॉमी में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि इन सैनिक वहां लड़ रहे हैं और रफाल आ रहा है और इस तरह से आ रहा है, लेकिन देखिए इन सबके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा। और वो पैसा गवर्नमेंट तक कैसे पहुंच रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, सीएस का, है ना, आप जैसे एक्सपर्ट्स का, आप जैसे प्रोफेशनल्स का। हाँ आज नहीं है, बन जाएंगे, उम्मीद तो है, सोच तो है ऐसी, है ना। कुछ मतलब बड़ा तो सभी एम कर ही रहे हैं कि भाई देश के लिए ये कर दूंगा और खुद के लिए भी ये कर दूंगा। और ये तो सबने ही देखा है कि, है ना, सीएस के पास पैसा तो ढेर मार के होता है ना, खूब कमाते हैं, रिस्पेक्ट भी है, राइट। जब मैं आपने सुना होगा सीए कोर्स में आर्टिकलशिप होती है, अभी हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमको ट्रेनिंग करनी होती है 3 साल की सीए कोर्स के दौरान, है ना। तो जब मैं अपनी आर्टिकलशिप पे जाता था, जब हम अपनी ट्रेनिंग करते थे, तो हमारे ऑफिस में बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ सीएफओ आते, है ना, और हमारे जो सीए थे, प्रिंसिपल थे, जिनके अंडर हम ट्रेनिंग करते थे, उनको आके सीए साहब, सीए सर, है ना, झुक के नमस्ते करते। मगर यार ये तो रिस्पेक्ट अपने को भी चाहिए, है ना। और सर बिना गाड़ी के तो हिलते भी नहीं थे, तो लगता था यार अपने अंदर अंदर ही अलग ही बूस्ट आ जाता था, यार चाहिए ये वाली चीज, राइट। तो देखिए रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, पैसा है ना। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है ये पैसा मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे पता है ये मैंने अपनी मेहनत से अचीव किया है, सब कुछ मेरा खुद का खड़ा किया हुआ है, और मेरे दिमाग में इतनी नॉलेज भरी हुई है, मैं किसी को भी कहीं भी, है ना, सलाह दे सकता हूँ किसी भी बारे में, ना सिर्फ अकाउंटिंग, ना सिर्फ टैक्सेशन, ना सिर्फ फाइनेंस, लेकिन लाइफ के फंडे सीख जाते हैं हम लोग। देखिए इतनी मेहनत की होती है। आप देखिए बहुत अलग अलग टेस्ट से एक सीए प्रोफेशनल को गुजारा जाता है जब वो उसको सीए बनाया जाता है ना। मेंटल उसका एप्टीट्यूड भी हाई किया जाता है, उसको कम्युनिकेशन फ्रंट पे भी डेवलप किया जाता है, उसको प्रोफेशनल फ्रंट पे भी डेवलप किया जाता है, उसको एथिकली भी डेवलप किया जाता है। तो बाकी पढ़ाई में जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज की नॉलेज ले रहे हैं, उसके तो एक्सपर्ट बन ही रहे, है ना, यानी कि पूरा देश चला सकते हैं। आपको पता है यूपीएससी, यूपीएससी तो सुना होगा सबने, यूपीएससी क्या होता है ना, आईएएस जो बनते हैं, जो देश को चला रहे हैं लोग, राइट। आप पाएंगे हर साल
बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स IAS बनते हैं, जो कि पूरे देश को चला रहे है ना, देश को कैसे चलाना है उसकी पॉलिसीज बना रहे हैं गवर्नमेंट में बैठ के, गवर्नमेंट को सलाह दे रहे हैं, है ना। कुछ स्पेशल इस तरह की पोस्ट निकाली जाती हैं जिसमें सिर्फ CAs को ही रखा जाता है, जिसमें सिर्फ CAs ही हायर किए जाते हैं गवर्नमेंट से, जिसमें गवर्नमेंट कहती है जी हम आपसे सलाह चाहिए। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी चेकिंग होनी है, किसी गवर्नमेंट कंपनी की भी चेकिंग होनी है, ऑडिटिंग होनी है, जो कि ऑडिटिंग देखिए हर कंपनी को, हर डिपार्टमेंट को, हर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को अपने फाइनेंशियल ना इंफॉर्मेशन देनी होती है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी होती है कि हमने क्या पैसा लिया था और वो कैसे कैसे खर्च किए, सही सही चीजें पे खर्च हुआ है नहीं, है ना। पीछे हमने सुना ये फ्रॉड पकड़ा गया या ये घोटाला पकड़ा गया, बहुत सारी हम न्यूज में पढ़ते हैं। ये सब घोटाले पकड़ने वाले लोग कौन है? हम ही है। आप समझ लो, इंजीनियर्स अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है उनसे ज्यादा नहीं है तो उनसे किसी भी तरह से कम नहीं। देश हमारे दम पर चल रहा है, पैसे को सेफगार्ड करने वाले लोग हैं हम, राइट। तो आगे आपको देखिए इस तरह से अगर बनना है तो आज से अपना एक सपना है ना, और सपना क्या है सुना है कभी? मैं मानता हूं देखिए दुनिया के ग्रेटेस्ट टीचर आज तक जो रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुत मैं उनको फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक कोट दी थी कभी, है ना, कि सपना वो नहीं जो सोती आंखों से देखा जाए, सपना वो है जो सोने ना दे, राइट। ऐसा एक सपना आज से पालना पड़ेगा, जो नींद ना आए, रात भर ये कहे यार कुछ बन जा भाई, कुछ करके दिखाना है ना। देखो पेरेंट्स के तो सपने हैं ही, हमारे खुद के भी सपने हैं, और उनको वेस्ट नहीं होने दे। बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए, है ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद हमको दिखती भी नहीं है, जो कि हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि क्या क्या सेक्रीफाइस किया, अपने ड्रीम सेक्रीफाइस किए हैं, क्यों? ताकि हम कुछ बन जाए। तो आज वो देखिए हमारे पास मौका है अगले 2 साल, जिसमें हमको अपने आप को इस तरह से इस लेवल पर उठाकर लेकर के जाना पड़ेगा कि हम कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएंगे दुनिया में, दुनिया में, देश में भी नहीं, दुनिया में। इंडिया को एक अलग लेवल पर लेकर जाए। आपको पता है इंडिया किस तरह से डेवलप कर, है ना। आपने देखा पेरेंट्स के, देखो अगर आप सेक्रीफाइस अगर सोचने लगो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मेजोरिटी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में मुझे पता है कि भाई अच्छी इनकम कर रहे हैं, है ना, इतना एक डिसेंट इनकम सभी के पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं। लेकिन कितनों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो हर साल पेरिस या लंदन, है ना, या दुबई घूमने जाते हैं हर साल, मम्मी भी पापा भी, है ना। बहुत कुछ कुछ के हो सकते हैं, 2-3 के हो सकते हैं, या चलो छोड़ो शिमला ही जा रहे हैं हर साल घूमने, है ना, मनाली जा रहे हैं हर साल घूमने। क्यों नहीं जा रहे? देखो मन तो हमारा भी करता है, स्विट्जरलैंड की फोटो देखते हैं मूवीज के अंदर, यार स्विट्जरलैंड जाऊंगा, बड़ा होकर इतना कमाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, है ना, न्यूयॉर्क में घूमूंगा। हाँ पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल उनके लिए भी है ना। हमारे पेरेंट्स भी इतना तो अर्न कर रहे हैं कि चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन उनको वो घूमने से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी दिख रही है? हमारी। यार अभी इसकी फीस जानी है ना, इसके हायर स्टडीज के लिए भी थोड़ा पैसा इकट्ठा करना है यार। तो लेकिन अगर हम ऐसा करें कि उन्होंने तो कितना देखो सेक्रीफाइस किया अपने सारे, है ना, सपने उनके भी हैं वही घूमने, लेकिन नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि हम दिख रहे हैं उनको। और फिर हम क्या करें? मेहनत ना करें, सभी चीजों को फॉर ग्रांटेड लें। इस तरह से तो हम कभी रियलाइज भी नहीं करते यार इतना सेक्रीफाइस कर रखा है। इतना छोटा सा एग्जाम्पल, इसके अलावा तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें सेक्रीफाइस। तो आज देखिए हमारा टाइम है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। कितने हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं, देखिए, है ना। कितने हमारा आप देखते हैं देश के अंदर गरीबी है, बहुत से बच्चों को मौका ही नहीं मिलता। आज हमको मौका मिल रहा है और इतने बढ़िया इस तरह के इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ने का मौका मिला, थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, है ना। तो फिर इस मौके को मैं वेस्ट नहीं होने दे सकता। बहुत कुछ बड़ा करना है, आज से सपना पालना है,
और सपना फिर इस तरह से पालना है कि वो सपना सोने ना दो। लग जाऊं किसी तरह, यार क्या सीख लूं, क्या अचीव कर लूं, क्या क्या अपने अंदर जोड़ लूं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके जो 11th में या 12th के कोर्स में होगा वही हम सीख सकते हैं, है ना। हम न्यूज पढ़ सकते हैं। क्या मैं आज से ये नहीं देख सकता कि क्या कंपनी किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रही है आगे बढ़ने के लिए, है ना। अगर आप थोड़ा सा न्यूज पढ़ना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे कंपनीज के बारे में, क्योंकि हमने देखिए अब कॉमर्स की स्ट्रीम अपना ली तो उसी तरह से सोचना है अब हमको, उसी में एक्सपर्ट बनना है कि नहीं। कंपनीज रन करनी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स रन करने हैं। अब देखिए हमने पीछे न्यूज सुनी होगी कि फेसबुक और व्हाट्सएप का मर्जर हो गया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो क्या आपको नहीं लगता ये चीज को फेसबुक वाले को, कंपनी को बताने वाला कोई ना कोई फाइनेंस एक्सपर्ट होगा कि सब देखो व्हाट्सएप को खरीदने से इतनी इतनी कमाई हो आएगी, इतना इतना हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं सोचने वाला बंदा होगा, है ना। आपने फ्लिपकार्ट से तो सभी ने शॉपिंग की होगी, फ्लिपकार्ट तो सभी को पता है। आपने रिसेंटली लास्ट ईयर सुना होगा वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा यूएस का ग्रुप है ना, वर्ल्ड ओवर उसकी चेन्स थी। उसने क्या किया, फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। तो क्या उस के साथ देखो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया में ये एक बड़ी कंपनी फैली हुई है, और इसको अगर हम परचेज करते हैं तो इतनी हमारी सेल बढ़ जाएगी, इतना हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इतना मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, ये हमारा ग्रोथ सिनेरियो हो सकता है। ये सब कुछ बताने वाला कोई ना कोई फाइनेंस एक्सपर्ट होगा, कोई ना कोई कॉमर्स का बंदा होगा। इंजीनियर तो होगा नहीं, डॉक्टर तो होगा नहीं शायद, है ना जी। तो देखिए कंपनीज को हम लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस हमको कल को लेने हैं, पूरी दुनिया को चलाना है, लेकिन उसकी मेहनत आज से करनी है। कैसे करनी है? आज आप न्यूज़पेपर उठा सकते हो, आपने न्यूज़पेपर उठाया, हर न्यूज़पेपर में एक बिजनेस पेज या इकोनॉमी के नाम से पेज होता है। अगर मैं उसको पढ़ूंगा, हमको फर्क नहीं पड़ता यार ये क्या आंदोलन में क्या चल रहा है ना, और कहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, इससे हमारा क्या फर्क पड़ता। हाँ, लेकिन किसी कंपनी ने किस कंपनी के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर कैसे एक्वायर किया, कौन कंपनी किसके साथ मर्ज कर रही है, क्यों कर रही है, क्या आज से मैं वो स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू नहीं कर सकता? थोड़ा थोड़ा जब मैं उनको पढ़ने लगूंगा तो मेरा इंटरेस्ट आने शुरू होगा, राइट। तो आपको लगेगा सीए कोर्स तो मुझको एक रास्ता दे रहा है, एक आप समझिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब देखा, जो फ्लाइट होती है उसके लिए एक रनवे होता है, तो पहले वो रनवे पे दौड़ता है और फिर वो अपनी उड़ान भरता है और फिर दूर दूर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, वो चाहे कितना ही दूर। तो बेसिकली सीए प्रोफेशन या कोई भी प्रोफेशन जो भी आप चुनते हैं, हम सीए का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट है ना। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आप बेस्ट के साथ ही जुड़ेंगे। तो ये बेसिकली एक आपको रनवे मिलेगा, एक हेलीपैड मिलेगा जिससे आपको उड़ान भरनी है। आप इस लायक हो गए कि आप उस हेलीपैड पर खड़े हो सकते, अपनी उड़ान वहां से भरनी शुरू कर सकते हैं ना। तो अब हम थोड़ा सा कोर्स का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं सीए प्रोफेशन का, है ना। तो शुरुआत आप कर सकते हो अपनी जस्ट 12th के जस्ट बाद, है ना जी। तो क्योंकि सभी 12th के स्टूडेंट्स हैं तो अब हम वही पार्ट डिस्कस करेंगे। एक तरीका ग्रेजुएशन के बाद भी होता है उसको शुरू करने का, प्रोफेशन के साथ जुड़ने का, लेकिन क्योंकि अभी सभी हमारे साथ 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो हम पोस्ट 12th आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह का बिल्कुल कोर्स स्ट्रक्चर हमारा सीएस प्रोफेशन में और सीएमए में भी चलता है, ठीक है, जिसका हमने डिस्कस किया था। लेकिन आप ये मान सकते हो कि कंपैरेटिवली थोड़ी सी मेहनत कम है, लेकिन उतनी ही फिर एक्सपर्टीज के लेवल भी कम, उतनी ही फिर मेरी कल को वैल्यू भी मार्केट में उसी तरह से होनी, राइट। मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा इसलिए शायद बता पाऊँ क्योंकि मैंने खुद ये सारे ही कोर्सेज कर रखे हैं। सीए भी मैंने किया हुआ है, मैंने सीएस, एलएलबी, सीएमए भी किया हुआ है मैंने। अगर कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है टीचिंग लाइन में जाना चाहे, मैंने नेट विद जेआरएफ भी क्लियर किया हुआ है। और डीसा हमारे कुछ इंस्टीट्यूट के पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज होते हैं डीसा, और मैंने करेंसी डेरिवेटिव्स में एक्सपर्टीज की अभी, क्योंकि हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो डेरिवेटिव्स भी आपने अभी पढ़ानी है। तो कुछ कोर्सेज हैं हमने अचीव किए हैं तो शायद मैं आपको बेटर बता पाऊँ बाकी कोर्सेज के बारे में। और फिर भी कोई और कोर्स के बारे में जानना चाहे तो हम सेशन के बाद आप मैं आपको कॉन्टेक्ट अपना डिटेल दूंगा, आप प्लीज डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सीए कोर्स में आप अपने 12th के दौरान ही रजिस्टर कर सकते हैं। मिनिमम 4 मंथ्स के रजिस्ट्रेशन के बाद
रजिस्ट्रेशन के बाद 4 मंथ्स की स्टडी के बाद मैं अपने एग्जाम में अपीयर हो सकता हूँ, जो कि फर्स्ट लेवल एग्जाम होगा, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। और आपको बता दूं, फाउंडेशन एग्जाम बिल्कुल आपके 12th के एग्जाम जैसा है, सेम सिलेबस, सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ एडिशन है, थोड़ा बहुत एडिशन है, हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क, बाकी लेवल वैसा ही है जैसा आपके 11th और 12th है ना। आप समझो ये बेसिकली एक तरह का फिल्टर है फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन एग्जाम। इंस्टीट्यूट चाहता है कि मुझे अगले लेवल पर वही स्टूडेंट्स चाहिए जो सच में कुछ बनना चाहते हैं, जो सच में डिजर्विंग। तो एक तरह का फिल्टर है, जिसने 12th में चीजें ठीक से पढ़ी हैं, समझी है, वो नेक्स्ट लेवल पर इजीली जा सकते हैं। ठीक है जी। फाउंडेशन में आपको अपीयर होना होगा, जो कि एग्जाम आपके होते हैं हर साल मई और नवंबर में। यानी कि जैसे अगर आप आज रजिस्टर करते हो 12th के बाद, तो 1 जुलाई के तक अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो आप 1 नवंबर के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, नवंबर में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम होगा जिसमें 4 अलग अलग आपको एग्जाम देने होंगे, 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट तो वही है अकाउंटिंग, जो आप पढ़ते आ रहे हो 11th में 12th में आपने पढ़ा है ना। सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सेम चीजें। नेक्स्ट एक एग्जाम वो भी आपने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स, है ना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने सब नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से एक एग्जाम होगा, लेकिन ये वाला इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होगा ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ये तो और मजे हो गए, है ना। इसका मतलब चार्ट नहीं बनाने पड़ेंगे, है ना, ग्राफ नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास एक एग्जाम आता है लॉ, बिजनेस लॉ। ये एक नया सब्जेक्ट, लेकिन बड़ा ही बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीजें हैं, जो एक लेमैन, है ना, एक कोई भी लॉजिकल थिंकर जो आसान शब्दों में चीजों को समझ सकता हो, है ना, वो इजीली उसको समझ ले। मतलब बड़ी लॉजिकल बातें हैं कि भाई आपने अगर मुझसे माल खरीदा, तो आप अगर मुझे पैसा नहीं दे रहे तो क्या मेरा लीगल राइट बनता है आपसे पैसा वसूलने का? बनता है, डेफिनेटली, है ना। तो इस तरह की बेसिक चीजें हैं उस लॉ के सब्जेक्ट, राइट। और फोर्थ हमारा सब्जेक्ट आता है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को खटक सकता है, मैथ्स एंड स्टैट्स। लेकिन आपको ये बता दूं, बड़ी अच्छी चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है मैथ्स एंड स्टैट्स, है ना, ज्योमेट्री भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन, है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस तरह के सब्जेक्ट, इस तरह के टॉपिक्स आपको, जो आपको कॉर्पोरेट्स में काम आएंगे, कंपनीज में काम आएंगे। कंपनीज में मुझे तो नहीं निकालना ना साइन कोस थीटा एज अ कॉमर्स प्रोफेशनल, है ना, वो साइंस वालों बंदों के काम आते हैं, तो हमको वो दी भी नहीं है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, हमको वही चीजें पढ़नी है जो हमारे जेन्युइनली काम आए। और स्टैटिस्टिक्स तो आपने इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ी है ना, मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सारी चीजें हमारे पास फिर से है। तो मतलब मोटा मोटा क्या है कि अगर मैंने 11th 12th में चीजें थोड़ा थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है, तो फर्स्ट लेवल तो मुझे कुछ भी नहीं लगने वाला, बहुत इजीली मैं निकाल लूंगा। इसीलिए हमको इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने 4 मंथ्स का टाइम दिया कि 4 मंथ्स में आप खुद को प्रिपेयर करो, एग्जाम दो और आगे बढ़ो। जो भी सीरियस बंदे हैं वो जेन्युइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने क्लियर कर लेंगे और जल्दी नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। तो देखिए जो हमारा फाउंडेशन लेवल था ना, उसको इंस्टीट्यूट ने ग्रेड किया है एज बिगिनर लेवल एग्जाम। लेकिन ये जो नेक्स्ट हमारा लेवल है जिसको हमने इंटरमीडिएट बोला, ये हमारा कहलाता है वर्किंग लेवल एग्जाम। समझ गया कि हमको इतनी नॉलेज लेनी है कि मैं चीजों पर काम कर सकूं। अभी मैं एक्सपर्ट लेवल पर नहीं जब पहुंचा हूं, अभी मैं उनके बारे में, चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर रहा हूँ। जैसे अब कुछ नई चीजें आएंगी, ऑडिटिंग जो आपने नहीं पढ़ी, है ना। अब ऑडिटिंग का जैसे मैडम ने अभी बताया था, ऑडिटिंग क्या होता है कि चीजों की, अकाउंट्स की चेकिंग करना। तो अगर मुझे अकाउंटिंग आती है तो ऑडिटिंग भी मैं कर ही सकता हूँ, बस मुझे उसमें कुछ गाइडेंस दे दी गई जो मुझे बताएगा कि इन इन चीजों को ध्यान रख के ऑडिटिंग करना, समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, वो चीजें कुछ इंस्ट्रक्शंस है, राइट। सेकंड एग्जाम अभी हमने बात की थी कॉस्टिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, है ना जी, कि कैसे कंपनी अपनी किसी भी चीज को बनाने की कॉस्ट निकालेंगी,
फिर एक एग्जाम आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 एस्पेक्ट आते हैं मेनली। कोई भी, एनीवन प्लीज, गलत सही कैसा भी। आई एक्सपेक्ट, देखिए आरपीएस के स्टूडेंट्स हैं आप सभी, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस में 2 एस्पेक्ट आते हैं, कुछ भी, गलत सही। हम फाइनेंस को किन किन सोर्सेज से रेज कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बेसिकली हम कहेंगे फाइनेंस की अरेंजमेंट, है ना, फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि पैसा आए कहां से और पैसा लगाए कहां पर। ये हमको थोड़ी थोड़ी चीजें शुरुआत में गाइड की जाएंगी इंटरमीडिएट लेवल पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि पैसा किन किन सोर्सेज से अरेंज हो सकता है। जैसे हमको पता है कंपनियां शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स हमने पढ़ा है 11th-12th में, है ना। वही चीजें फिर से आएंगी, हमको बताएंगे कि डिबेंचर्स कब कब इशू करने चाहिए, है ना, किस किस तरह के डिबेंचर्स हो सकते हैं, ये भी आपने पढ़ा है 12th में मोटा मोटा, है ना। थोड़ा सा उसमें आपको और एडिशनल चीजें दे दी जाएंगी, है ना। उसके अलावा आप पैसा लगाएं कहां पर, थोड़ा सा ये आपको गाइड किया जाएगा। किस तरह से आपको डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए, बहुत अच्छी और आसान और लॉजिकल चीजें, यानी कि जो भी थोड़ा सा हर चीज के पीछे क्यों पढ़ता है ना। देखिए पढ़ने का तरीका आज जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्यों के साथ। या मैंने कुछ भी पढ़ा कि जी मान लीजिए मैंने सेल की एंट्री पढ़ी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, तो ये सेल ही क्रेडिट क्यों हुआ, कैश ही डेबिट क्यों हुआ। एक तो ये तरीका, एक तरीका है यार ये बुक में लिखा हुआ था मैंने याद कर लिया, एग्जाम में आएगा मैं ये लिखाऊंगा, है ना। लेकिन जिसका पहला वाला तरीका था ना, उसको सारी चीजें बड़ी आसान लगने वाली है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक सोच है। और एक सिंपल लेमैन अगर वो थोड़ा भी समझदारी से चलता है, वो इजीली चीजों को समझ सकता है। ठीक है जी। तो एक हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट हमने बताया था आपको, ऑडिटिंग बताया, है ना, और एक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो हम जैसे आज कर रहे हैं, बिल्कुल आप पाओगे मेजोरिटी सब्जेक्ट, मेजोरिटी टॉपिक्स वही है आगे। 12th के स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, वो कंपनी अकाउंटिंग कर रहे होंगे यहाँ पर, है ना, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे होंगे यहाँ पर, सेम आएगा फिर से। यानी कि अगर मैंने 12th में पार्टनरशिप को अच्छे से पढ़ लिया, कंपनी की अकाउंटिंग को अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं इंटरमीडिएट लेवल की भी वो साथ साथ मेरी तैयारी अभी हो रही है, सिर्फ 1-2 पॉइंट नए जोड़ देंगे उसके अंदर बस, और कुछ भी नया नहीं। थोड़ा सा आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड रेज कर दिया जाए कि आपने वो सच में समझा था या आपने उनको याद किया था। तो 12th में तो शायद हम याद करके भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमको समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड मिलता है, जो कि अराउंड 1 साल का हो जाता है आपको, है ना। जैसे आपने नवंबर में फाउंडेशन के एग्जाम दिए, तो आप नेक्स्ट नवंबर में अपना इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हैं, है ना जी। और यहाँ पर टोटल 8 एग्जाम है, जिसमें मैंने आपको 4 बताए, 4 एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि एक एग्जाम तो आप देखिए सेकंड अकाउंटिंग का ही फिर से है, यानी कि अकाउंट से मुझे 2 एग्जाम देने। टोटल सिलेबस को बस क्या किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जब मैंने सीए किया था क्वालिफाई, उस टाइम एक ही एग्जाम था और पूरा सिलेबस था, एक ही एग्जाम। अभी क्या किया उन्होंने, इंस्टीट्यूट ने उसी सिलेबस को 2 एग्जाम्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, चीजें वही, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम आता है टैक्सेशन, टैक्स लॉ, बिल्कुल शुरुआती लेवल। और जो स्टूडेंट्स आपको बता दूं ग्रेजुएशन करेंगे, वो ग्रेजुएशन में भी यही सभी सब्जेक्ट्स आने वाले, ठीक है जी। टैक्स लॉ में कैसे किसी तरह से इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ना। जीएसटी आप लोग सुनते होंगे, जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो कब लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो लॉज हमको समझने, राइट। और उसका तो हमको एक्सपर्ट ही बनना है। उसके बाद एक एग्जाम हमारा आएगा यहाँ पर, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारा एग्जाम आएगा कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, है ना, एंड अलाइड लॉ, कि कंपनी के जो भी लॉ कंपनी के ऊपर लागू होता है। कंपनीज एक्ट आपने थोड़ा थोड़ा इसमें देखा है 12th के अंदर हमारे, है ना, अकाउंट्स के अंदर, कि कंपनी लॉ में कैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें लिखी हुई है। बाकी कंपनी लॉ एक बहुत वास्ट लॉ है, उसका थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल में आएगा, कि कंपनीज के ऊपर क्या लॉ लागू होता है, कैसे कंपनीज चलती हैं, कैसे कंपनीज को मीटिंग करनी होती है, कैसे कंपनीज को शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना होता है,
कैसे कंपनीज अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती हैं, वो सारी चीजें हमको उसमें बताई जाती हैं, जो कि अगर मैं प्रैक्टिकली सोच पा रहा हूँ, विजुअलाइज कर पा रहा हूँ चीजें, तो मेरे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास 8 एग्जाम है और इन 8 एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है जी, 4 एग्जाम एक साथ, 4 एग्जाम एक साथ। अब मैं चाहूं तो 4 एग्जाम एक बार में दे सकता हूँ, है ना, और अगले 6 महीने बाद हर 6 महीने में एग्जाम होंगे, मई और नवंबर में, और फिर 6 एग्जाम, सॉरी 4 एग्जाम अगली बार दे सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, 8 एग्जाम एक साथ भी दे सकते हैं सभी, राइट, ताकि हम जल्दी आगे बढ़ जाए। और बड़ी अच्छी चीज है जब बहुत आसान सिलेबस है, बहुत आसान कोर्स है, मतलब आसान अभी एज सच नहीं है कि हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि लॉजिकल है, थोड़ा बहुत आप चीजों को समझ के करेंगे तो बहुत आसान आपको चीजें लगने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी, है ना। लेकिन इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सीए कोर्स का, वो है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। आपको, जैसे आप समझिए कोई डॉक्टर है ना, उसको अगर ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाए, तो वो ऑपरेशन आज तक उसने किया नहीं, सिर्फ किताबों में ऑपरेशन पढ़ा है, कैसे ऐसे ऑपरेशन होता है, ऐसे सर्जरी की जाती है ना, ऐसे कट करते हैं, तो लोगों को मार के छोड़ेगा, है ना, किताबी डॉक्टर को। तो ऐसे ही हमको क्योंकि प्रोफेशनल बनाया जा रहा है, तो कहते हैं जी आपने ठीक है बुक्स में चीजें पढ़ी, लॉ पढ़ा, आपने मैनेजमेंट पढ़ी, अब आप वो प्रैक्टिकली भी करो, कंपनीज को चलाओ, है ना, लेकिन किसी की गाइडेंस में, इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, आप दूसरों को देख के सीखो, है ना। आपके ऊपर एक सीए होगा, सीनियर होगा, है ना, क्वालिफाइड सीए, उनके नीचे आपको 3 साल काम करके पूरी मिक्स एंड ट्रिक्स प्रोफेशन की सीखनी है। सारी जो चीजें आप बुक्स में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली देखनी है, वो अपने क्लाइंट्स के पास आपको भेजेंगे, है ना, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स के पास आपको भेजा जाएगा, जिनका आप वर्किंग देखेंगे, कैसे वहां पर काम होता है ना, वो जो चीजें मैं बुक में पढ़ के आ रहा हूँ वो प्रैक्टिकली कैसे लग रही है। मतलब कि मुझे तो बड़ा, जब मैं पढ़ता था उस टाइम, जब हम सीए कर रहे थे और फिर हम ऑफिस में जाते थे, तो हर चीज मैंने आज बुक में पढ़ी। जैसे एक आप पढ़ोगे आगे चल के, एक ईपीएस करके चीज आती है जो हमको बैलेंस शीट में देनी होती है, शायद आप लोगों ने अपने 12th में पढ़ा भी होगा, अर्निंग पर शेयर। अब एक दिन क्या हुआ, मैं अर्निंग पर शेयर घर से पढ़ के गया अपनी बुक से, ऑफिस गया जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, और सर ने मुझे बताया कि बेटा ये बैलेंस शीट बनी है ना, इसमें क्या करो, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर दो, और फिर वो कंपनी के जो हमारे क्लाइंट है उनकी मैनेजमेंट को भेज दो। अब देखो, एक तो सुबह ही पढ़ के आया हूँ 2 घंटे पहले ही, और कंपनी की, असल कंपनी की मुझको बनाने को मिल गई। अब मुझे होमवर्क करने की जरूरत थोड़ी है नहीं, बार बार पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, मेरे तो दिमाग में छप गया ईपीएस। अब जब एग्जाम में ईपीएस आएगा, पिक्चर आ जाएगी सामने उसी कंपनी की, यार ये बैलेंस शीट में ऐसे ईपीएस निकाला था मैंने। अब समझो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप, कि जो जो चीज मैं बुक में पढ़ रहा हूँ वो मुझे एग्जैक्टली मेरे सामने देखने को मिल रही है, तो सीधा दिमाग में जाती है, उसको याद नहीं करना पड़ता, रटना नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली खुद अप्लाई कर दिया, है ना। उसके बाद जब मैं सीए बनूंगा तो दिन रात ईपीएस निकाल दूंगा, कभी भी निकलवा लो मुझसे। आ गया समझ में, राइट। तो इसी तरह की चीजें हैं, टैक्सेशन आप पढ़ के आएंगे, आपको कंपनी में जाओ, आप ऑफिस में जाओगे, आपको बोला जाएगा जी ये टैक्स का नोटिस आया है, इसका रिप्लाई तैयार कर दो। अब आप रिप्लाई तैयार करने में क्या कर रहे हो, है ना, रिप्लाई देना होता है हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आपको बोला गया जी रिप्लाई तैयार कर दो। अब रिप्लाई तैयार करने में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने लॉ पढ़ा था उसी को यूज करना है, कि सर लॉ में ये बात लिखी हुई है, आपने ऐसा बोला हुआ है, लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, दिमाग में छप गया लॉ। तो मुझे एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन रात पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब पढ़ा था अगर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने अच्छे से देख ली, तो इसलिए देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। थर्ड लेवल हमारा होता है इसके अंदर कोर्स में फाइनल, राइट। फाइनल में भी वैसे ही 8 एग्जाम है जो हमने एग्जाम वहां देखे थे, लेकिन यहाँ पर अकाउंट्स का एक ही एग्जाम होगा। जैसे हमने वहां पर 8 एग्जाम देखे थे, उसमें 2 एग्जाम हमारे अकाउंटिंग के थे, यहाँ पर अकाउंटिंग का एक ही एग्जाम है, लेकिन एक नया एग्जाम साथ में अब हमारे साथ जुड़ जाता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल एग्जाम, जिसके अंदर हमको 4 या रादर 5 हमको ऑप्शंस मिलते हैं फाइनल में,
जिसमें आप एक्सपर्टीज करना चाहते हो। जैसे एक आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, एक आपको ऑप्शन मिला इंटरनेशनल टैक्सेशन मान लीजिए, ठीक है। अब आपने सोचा है यार मुझको इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक्सपर्टीज करनी, तो आप वो वाला सब्जेक्ट चुनिए अपना ऑप्शन के अंदर, आप उसकी गहराई में स्टडी करेंगे, है ना। और एक ट्रेनिंग के दौरान ही एक नई चीज और आती है आजकल, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। मतलब इंस्टीट्यूट ने उसका भी एक प्रोविजन दिया है कि आप 10 मंथ्स के लिए किसी कंपनी के साथ जुड़ के भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब कि पहले जो वैसे तो 3 साल आपको किसी सीए के अंडर ट्रेनिंग करनी है। सीए कौन होना चाहिए? प्रैक्टिसिंग सीए। प्रैक्टिसिंग सीए यानी कि जिनका अपना ऑफिस है, जो इंडिपेंडेंटली सलाह देते हैं क्लाइंट्स को, है ना, किसी जॉब में नहीं, किसी कंपनी की जॉब नहीं कर, राइट। ट्रेनिंग आपको वैसे उनके अंडर करनी होती है, लेकिन 10 मंथ्स का एक नया प्रोविजन है कि आप 10 मंथ्स के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। यानी कि किसी कॉर्पोरेट के साथ जुड़ के भी 10 महीने उस कंपनी में जाओ और उस 10 महीने तक उस कंपनी को सर्व करो, उसकी वर्किंग को समझो, कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है ना, और वो आप ट्रेनिंग के साथ सीख सकते हो, ठीक है जी। फाइनल में आपको जो 8 एग्जाम देने हैं, वो भी इसी तरह से आपको 4-4 के आप ग्रुप में दे सकते हो और आप इकट्ठा भी दे सकते हो। वही हर 6 महीने में एग्जाम होते हैं, लेकिन आप फाइनल के लिए एलिजिबल कब होंगे? जब आपकी 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तब आप फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है जी। और इस कोर्स के दौरान साथ साथ आपको 2 कोर्स, है ना, वैसे आपको ये थोड़ा आइडिया होगा कि ये दोनों ही जो हमारा सीए कोर्स है, ये कॉरेस्पोंडेंस कोर्स है, कह सकते हैं आप, डिस्टेंस कोर्स है, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। इसका मतलब इंस्टीट्यूट कोई कॉलेज में क्लासेस रन नहीं करता, है ना, कोई आपको कैंपस नहीं मिलता इसका। तो थोड़ा सा एक कहीं कहीं स्टूडेंट्स को लगता क्या है कि यार एक कमी कहाँ रह जाती है कि मैं लोगों से कम्युनिकेट बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा। हालांकि जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तब तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो, लाइव, है ना, बिल्कुल आप ऑन द हॉट स्पॉट पे जाकर काम करें। लेकिन उससे पहले कई स्टूडेंट्स को कमी क्या लगती है कि सर कॉलेज में अगर जाते हैं तो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सोशलाइज होते हैं, है ना, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े डेवलप हो। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक प्रोविजन ये रखा है कि हमको 2 ट्रेनिंग्स करनी होगी 4 वीक्स की ईच। 4 वीक्स में 2 हफ्ते हमारी ट्रेनिंग होगी कंप्यूटर्स की, और 2 हफ्ते हमारी ट्रेनिंग होगी मैनेजमेंट स्किल्स पे, कह सकते हैं आप, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कह सकते हैं आप, ठीक है जी, जिसको हम AICI TSS बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, राइट। तो ये हमको 4 हफ्ते का एक बार करना है ड्यूरिंग आवर इंटरमीडिएट, और एक बार मुझे ड्यूरिंग माय फाइनल फिर से ये 4 हफ्ते का कोर्स करना हो। लेकिन ये दोनों कोर्सेज रन करता है हमारा आईसीआई। तो आईसीआई की ब्रांचेज हैं, जैसे हमारे पास रेवाड़ी ब्रांच है, तो रेवाड़ी ब्रांच भी इस तरह के हमारे सेशंस ऑर्गेनाइज करता रहता है ना, वहां पर हम इसको अटेंड कर सकते हैं। और बहुत बहुत अच्छा लर्निंग फेज होता है, आपके नेटवर्क्स बनते हैं अपने पीयर्स के साथ आपके, क्योंकि सेम प्रोफेशन के स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको मिलते हैं जो अलग अलग स्ट्रीम में जाएंगे फ्यूचर में, तो उनके साथ आपको कनेक्ट करने का मौका मिलता है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका कोर्स है। पासिंग क्राइटेरिया तीनों ही लेवल में, यहाँ थोड़ा सा अपने ये कॉलेज वाला और स्कूल वाले पासिंग क्राइटेरिया से थोड़ा सा अलग है ना, वो आपको समझना है। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, प्लस एग्रीगेट 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। हर सब्जेक्ट में 40% का क्या मतलब है, और एग्रीगेट 50% का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए 8 एग्जाम मुझको इंटरमीडिएट में देने, तो मुझको टोटल, अगर मैं 8 एग्जाम में अपीयर कर रहा हूँ, तो मुझको 400 मार्क्स चाहिए सभी 8 सब्जेक्ट में मिलाकर। अगर मैं 4 ही एग्जाम दे रहा हूँ एक बार में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 200 मार्क्स मुझको अचीव करने चारों सब्जेक्ट्स में मिला करके, और मैं पास हूँ। लेकिन हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स तो आने चाहिए ना। ये थोड़ा सा आपको किस लिए रखा गया आपको समझना पड़ेगा, कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करे कि एक सब्जेक्ट को तो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है ना, और दूसरे स्ट्रीम को उसने, क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कंपनीज को सलाह देने में काम आएगी, वो भी कंपनीज को चलाने में काम आएगी, हर चीज ही काम आने वाली है, हर चीज का एक्सपर्ट बनना है आपको, है ना। तो एक चीज मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूं, लेकिन एक चीज को मैं बहुत समय ना दूं, तो उससे क्या होगा, मेरी कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज में कमी रह जाएगी।
राइट। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि आपको हर चीज को इक्वल वेटेज देख करके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सब्जेक्ट वाइज भी आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। लेकिन अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में 40 से कम आ गए तो बाकी सब्जेक्ट में आपके 50 प्लस हैं, है ना, तो फिर आपको वो एग्जाम भी फिर से देने पड़ेंगे। तो देखिए ग्रेजुएशन से थोड़ा सा हमारा लेवल यहाँ पर उठा दिया गया कि आप जिसने जेन्युइनली मेहनत की है, तुक्का नहीं लग रहा है, जिसने जेन्युइनली मेहनत की है, सब चीजों को अच्छे से पढ़ा है, वही आगे बढ़े, राइट। तो आपने देखिए कितने लेवल पर काम किया, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखी, आपने बुक्स के अंदर बहुत मेहनत करके चीजें सीखी, आपने लॉ पढ़ा, आपने टैक्सेशन पढ़ा, है ना, आपने अकाउंटिंग पढ़ी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी, आपने उन चीजों को कंपनी में जाकर के 3 साल तक कर करके भी देखा, तब जाके आप एक सीए बन के निकल रहे हैं जो कि कंपनीज को, है ना, सोसाइटी को और नेशन को सर्व करने के लिए रेडी। तो बहुत अच्छी आप समझिए रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत पैसा मिलता है ना, और सबसे अच्छी चीज सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने सच में कुछ किया, कुछ अच्छा किया, कुछ बड़ा किया, है ना। और उसके बाद तो आपके लिए बहुत दुनिया भर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत अलग अलग चीजों में आप जा सकते हो, अलग अलग एक्सपर्टीज में हमारे सीएस जाते हैं। बहुत से सीएस आप समझिए कंपनीज में एज ट्रेजरी मैनेजर काम कर रहे हैं, बहुत से सीएस एज टैक्सेशन मैनेजर काम कर रहे हैं, बहुत से सीएस, है ना, ये कंपनी का एडवाइस कर रहे हैं कि आपको किसके कहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट लानी है, एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम कर रहे हैं। कोई फॉरेक्स मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है, फॉरेक्स मैनेजमेंट देख रहा है कंपनी, है ना, कोई अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, अपना ऑफिस स्टार्ट कर रहा है, अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है क्लाइंट्स को, तो वो भी मल्टीवर्स एक्सपर्टीज, टैक्सेशन में कोई कर रहा है, कोई जीएसटी में कर रहा है सिर्फ, है ना, कोई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में कर रहा है, कोई इंसॉल्वेंसी पे काम कर रहा है सिर्फ, कि कंपनीज में आपने सुना होगा इंसॉल्वेंट हो जाती हैं कंपनीज भी, है ना, कोई उसी का एक्सपर्ट है, उसी तरह के केसेस हैंडल कर रहा है, उसी की एडवाइजरी कर रहा है। तो ऑप्शंस दुनिया भर के खुल जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट तो मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी चले जाते हैं, वो कहते हैं यार इतना मुझे सब कुछ आता है तो मैं देश भी चला सकता हूँ, थोड़ा बहुत और मेहनत करते हैं तो यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, है ना। लेकिन देखो यूपीएससी एक बहुत आप समझिए थोड़ा सा मुश्किल गेम है, तो मैं एडवाइस हमेशा ये करता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास सलाह के लिए आते हैं कि आप कुछ बैकअप कोर्स एक बड़ा करें उससे पहले। अगर आप यूपीएससी में जाना भी चाह रहे हैं तो आप पहले एक बैकअप कोर्स अच्छे से, एक बहुत बढ़िया सा कोर्स जिसमें आप क्वालिफाई करो, फिर यूपीएससी में जाओ। जैसे सीए आपने किया, उसके बाद अगर आप यूपीएससी में जा रहे हो, तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा किसी भी वजह से हम यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, तो मेरे पास कोई छोटी मोटी चीज नहीं आ रही, मैं एक बहुत अच्छी लेवल की चीज हाथ में लेके बैठा हूँ जिसके बेस पे मैं किसी भी लेवल पर पहुंच सकता हूँ, किसी भी तरह का लेवल अटेन कर सकता हूँ, राइट। तो उसके बाद बस आप जब ये सारे आपने एग्जाम किया, आपने अपनी ट्रेनिंग 3 साल की कंप्लीट की, है ना, उसके बाद आप बिल्कुल कंप्लीट है सीए आप बनेंगे, आपको एक मेंबरशिप मिलती है इंस्टीट्यूट की। और मुझे याद है जिस दिन मैं सीए बना था, मैं शायद कम इमोशनल था, और पेरेंट्स के तो आंसू नहीं रुक रहे। और मेरे फादर की शॉप होती थी मार्केट में, तो एक एक दुकान पे जाके आंसू के साथ, है ना, चेहरे पे हंसी, आंखों में आंसू, और बोलते थे जी मिठाई खाओ लड़का सीए बन गया। देखिए वो वाली मेहनत, है ना, आपको करनी है, इस वाली हंसी के लिए, इस वाली खुशी के लिए हम सारा जिंदगी नौछावर कर देना, वो अलग ही फीलिंग आएगी आपको, सेंस ऑफ अचीवमेंट। मैं नहीं कह रहा वो सिर्फ सीए से आएगी, किसी भी चीज से आएगी, लेकिन हर चीज में आपको मेहनत करनी है। ठीक है जी। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। किसी और कोर्स के बारे में आपको पूछने की जरूरत लगती है ना। एमबीए के बारे में सबको पता है, आप बीबीए के बाद, बीकॉम के बाद एमबीए परस्यू कर सकते हैं मैनेजमेंट में जाने के लिए, है ना। उसके लिए आपको कैट या मैट इस तरह के एग्जाम्स में अपीयर होना होता है। तो ये जनरल चीजें हैं जो आप सभी को पता है। इसके अलावा एक ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत बड़ा अच्छा कोर्स है, अगर आप कैपिटल मार्केट्स में जाना चाहें, इंस्टीट्यूट है एक फरीदाबाद के अंदर, है ना, जो सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सपर्टीज देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसका भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, इंटरव्यूज में अपीयर होना पड़ता है, और आप पाओगे उस तरह के इंस्टीट्यूट में। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ ग्रेजुएट ही आता है,
IAS लेवल तक के बंदे उसमें आपके साथ बैठे होंगे। तो इस तरह के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन मैं पाता हूँ कि जब मैंने क्योंकि सीए किया और मैं खुद को सक्सेसफुल पा रहा हूँ, बहुत मेरे आसपास जितने सीए हैं मैं सबको सक्सेसफुल खुश पा रहा हूँ, बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, है ना, बड़ी रिस्पेक्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, आप इसमें डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। ओवर टू यू मैम, मैम। Yes, everyone, take your queries. You can unmute yourself. Take your queries one by one. If you want to ask something from respective Nikun sir, you can take your queries. Good afternoon, sir. जी Sir, is there any benefit doing LLB with CA course? जी, देखिए आप समझिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपने सोचा है कि सीए के बाद हमको प्रैक्टिस करना है, राइट, तो अगर आप BA LLB तो शायद साथ ना कर पाए, लेकिन आप LLB कर सकते हैं जरूर सीए के बाद, है ना। जैसे मैंने किया, मैंने सीए के साथ CS किया और बाद में मैंने LLB किया। LLB से मुझे बेनिफिट क्या मिला, जब मेरे क्लाइंट्स बहुत से आते हैं हमारे पास जिनको लीगल सलाह भी चाहिए, है ना, लेकिन वो लीगल सलाह टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है सर, है ना, उनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड भी उनको एडवाइजरी चाहिए होती है ना। और मुझे लगता है कि इस तरह के क्लाइंट्स में सर्व करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर वो स्टडीज मुझे कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करती है। लेकिन आप देखिए, एज प्रैक्टिस आप कोई एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप सीए की ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लॉयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एज अ सीए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं कोर्ट में जाकर के अपना केसेस क्लाइंट्स के लिए नहीं लड़ सकता, है ना, लेकिन मैं कंसल्टेंसी जरूर दे सकता, एडवाइजरी जरूर कर सकता। ठीक है, तो अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, साथ साथ आप अपना सीए प्रोफेशन के साथ जुड़ के आप लॉ की प्रैक्टिस करना चाहें, तो फिर आपको जरूर तो LLB कोर्स होता है, वो 3 इयर्स कोर्स होता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, राइट। BA LLB 5 ईयर कोर्स है, वो पोस्ट 12। Okay, sir. इसमें सर इफ यू डोंट माइंड मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब हम आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम कोई भी अदर कोर्स जो है वो नहीं वो कर साथ सकते साथ नहीं कर एक्सेप्ट वन कोरेस्पोंडेंस कोर्स जो हमारा 3 इयर्स का आर्टिकलशिप टेन्योर है। तो हम उसमें उस दौरान कोई भी ऐसा कोर्स जो रेगुलर कोर्स है मतलब वो देखिए, हम आप परस्यू नहीं कर बेसिकली सकते हैं। कोरेस्पोंडेंस चीज कोर्स भी कर सकते हैं, सिर्फ एक एक। जगह ही, हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं बरका कि बेसिकली आप एक ही जगह हो सकते हो, या तो आप ऑफिस ही जा रहे हो ट्रेनिंग में, या आप कॉलेज ही जा रहे हो, आप दोनों जगह कैसे एक साथ हो सकते हैं, है ना। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करेगा, तो इसका मतलब वो ट्रेनिंग स्किप कर रहा है, जो कि बड़ा जरूरी है ना। तो आप आर्टिकलशिप के बाद रेगुलर कॉलेज वाले कोर्स कर सकते हैं, आर्टिकलशिप के साथ साथ आप कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे CS मैंने आपको बताया, वो मैंने जैसे साथ साथ किया, CA और CS मैंने दोनों साथ साथ किए, क्योंकि CS के लिए मुझको अलग से कहीं कॉलेज नहीं जाना पड़ता था, वो भी एक CA जैसा कॉरेस्पोंडेंस कोर्स है ना। ट्रेनिंग मेरी एग्जाम्प्ट हो गई थी क्योंकि मैंने CA की ट्रेनिंग कर ली थी, मैंने CA क्वालिफाई कर लिया था, तो मुझे CS वाली ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी। CS कोर्स में भी ट्रेनिंग होती है CA की तरह, लेकिन CS की नहीं करनी पड़ी क्योंकि CA क्वालिफाई कर लिया था, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है जी। Thank you, sir. Yes, thanks. Take your query. Yes, Shweta, Dharvi. Please take your queries. If you want to ask something from sir, you can ask. नो इश्यूज मैम, मैं अभी कांटेक्ट अपना शेयर कर देता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट्स कांटेक्ट करना चाहें, है ना। अभी अगर कोई क्वेरीज हैं अभी आपके दिमाग में है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। अगर अभी याद नहीं आ रहा कि क्या पूछना है, बाद में कल को कोई मुझे लगता है यार ये चीज पूछ लेनी चाहिए थी, तो आपको मैं अपने कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा, आप मैसेज करके व्हाट्सएप वगैरह, है ना। कोशिश कीजिए कि कॉल ना करें, मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलने आना चाहें तो आप कभी मैसेज करके मिलने के आ सकते हैं, रेवाड़ी में हमारा ऑफिस है। ठीक है जी, कोई भी आपको हेल्प चाहिए आपके लिए हम डेफिनेटली अवेलेबल हैं, राइट। कोई अभी आपकी क्वेरीज है तो आप अभी प्लीज रख सकते हैं। Yes, anyone? तो जतिन सर, फिर
सेशन को क्लोज करते हैं ना? Yes, आप sir. अगर कॉन्टेक्ट डिटेल आप चाहें तो मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप बोल दीजिए, इट वुड बी बेटर कि बच्चे नोट कर लेंगे। 720, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, 720662050. Right? And my email ID is Nikunj, NIKUNJ. फिर से रिपीट करना नंबर। सर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं बच्चे के टेक्स्ट पे डाल दूंगी। ओके, फाइन। एक मैंने जो तन्वी मैम सीए जो हमारे प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस है, I Sir, I have also shared. I have also sent you that so that you can circulate it to the students sir, I have and they'll shared. get benefited from it. Yes, sir, definitely. Thank you so much, Nikun sir. From the deepest of my heart, I express my sincere gratitude for sparing your valuable time. To respected Nikun sir, Jatin sir, Jitesh sir, respected principal sir, Suman ma'am, our PGT coordinator, and my respected colleague Swati ma'am and Sangeeta ma'am. And hope each student is pretty much aware about of being a chartered accountant. Let's be hopeful and stay strong to achieve what we have always believed. Concluded this precious noon full of wisdom, I can say, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बेटा कभी भी घबराना नहीं है, बहुत सारे रिवर्स घेर आएंगे, मैं ये कह सकती हूँ, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। Now I hand over mic to respected Suman ma'am to say few words for my faculty members as well as my dear students. Thank you, Tanvi ma'am. Good afternoon, all. Actually, on the behalf of RPS family, I would like to thank you all who are present here and share their valuable time for our students. Actually, our commerce students, actually, they don't know why they opted commerce stream. That is the harsh fact. But after listening Nikun sir, I really think that now they don't have any dilemma why they opted this stream, and they will do their best in their career. They decide what career option they would like to choose and how they would excel in that. Thank you very much, sir. Thank you, dear students, for such a being a nice cooperation. Thank you, Nikun sir. Thank you very much. Now I'm ending the session. You can call Nikun sir. I'm sharing number of Nikun sir as well as his email ID. Okay. Bye-bye, everyone. Take your lunch. Lunch is ready for you. Thank you, everyone. Thank you.